नमस्कार, मैं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। फिलहाल हम मौजूद हैं नेस्को में, जहां पर इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया गया है। आज तीसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर मैरीटाइम वीक को संबोधित किया। इसमें मोदी जी ने भारत के समुद्री तट को कैसे समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाना है, इस पर जोर दिया। इसके साथ साथ भारत में चीप से लेके शीप तक कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, इस बात पर भी जोर दिया। इसी के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात पर भी पीएम मोदी जी ने अपनी बात रखी। इसमें मैरीटाइम विजन 2047 का भी जिक्र किया, जिसमें भारत के मेजर पोर्ट्स यानी कि वाधवान पोर्ट को दुनिया का टॉप 10 बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट बनाने की बात भी पीएम मोदी जी ने इस पूरे कार्यक्रम में कही। नेस्को में, जहां पर इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया गया है। आज तीसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर मैरीटाइम वीक को संबोधित किया। इसमें मोदी जी ने भारत के समुद्री तट को कैसे समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाना है, इस पर जोर दिया। इसके साथ साथ भारत में चीप से लेके शीप तक कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, इस बात पर भी जोर दिया। इसी के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात पर भी पीएम मोदी जी ने अपनी बात रखी। इसमें मैरीटाइम विजन 2047 का भी जिक्र किया, जिसमें भारत के मेजर पोर्ट्स यानी कि वाधवान पोर्ट को दुनिया का टॉप 10 बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट बनाने की बात भी पीएम मोदी जी ने इस पूरे कार्यक्रम में कही। तो आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम की एक झलक। Of claps, ladies and gentlemen. A visionary leader who energizes the nation's machinery into purposeful action and boosts the transformative power of India's maritime economy. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के समारोह में मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूं और सभी की ओर से उन्हें साभार नमन करती हूं। At the very outset, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, will be felicitated by Honorable Minister of Ports, the Honorable Prime Minister, to kindly do us the honors. India's coastline and strategic location make it central to global maritime trade, handling over 90% of our cargo volume. The sector is a cornerstone of economic growth. Guided by Maritime India Vision 2030 and Amrit Kaal Vision 2047, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a maritime renaissance is underway to make India a major shipbuilding nation. अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। Government of India has launched a shipbuilding reform package of about 70,000 crore rupees, which focuses on 4 strategic pillars: financial support, long-term financing, infrastructure modernization, and policy reforms. These reforms are expected to unlock 4.5 million gross tonnage shipbuilding output per annum, attract 4.5 lakh crore rupees investment, and generate 3 million jobs, positioning India as a global shipbuilding powerhouse. Global confidence is surging, reflected in recent landmark partnerships. CMA CGM ordering vessels from Cochin Shipyard. HD Geso and Cochin Shipyard launching ship block fabrication facility in Kochi. Cochin Shipyard and DP World developing offshore fabrication and ship repair clusters. Swan DHI and Samsung Heavy Industries collaborating. Acquisition of Colombo Dockyard by Muscat Dock. Today, the Honorable Prime Minister
dedicates a suite of transformative initiatives to the nation. Shipping Corporation of India, expansion of fleet to 216 vessels by 2047. Launch of India's own Bharat Container Shipping Line with 51 container vessels. Oil and gas vessel orders worth 47,800 crore rupees. Green Tug Program. Acquisition of 100 eco-friendly tugs worth 12,000 crore rupees by 2040. Dredging Corporation of India. Acquisition of 11 dredgers. That is a total acquisition of 437 vessels, boosting the domestic shipping and shipbuilding ecosystem. India is entering a new era of maritime self-reliance and global leadership. This is Maritime Amrit Kaal. India's global maritime future. मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में गिने जाते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बहुत अच्छा मंथन और चिंतन इस मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 एक ऐसा मंच, एक ऐसा डायलॉग आज स्थापित हो रहा है जिससे देश और दुनिया में मैरीटाइम के क्षेत्र में होने वाले बदलाव और उसके कारण होने वाला जो फायदा है उसको हम देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर री इमेजिनिंग द मैरीटाइम स्पेस ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सामुद्रिक शक्ति का जो आविष्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं और दुनिया के व्यापार में भारत की एक नई भूमिका जो हम देख पा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये थी आज की खास खबर। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा।